to somebody who can be called as the super nose of India. In the world of perfumery, small mistakes can lead to big disasters, and big disasters sometimes can lead to big fortune. अतर का जन्म जो है वो बेसिकली कन्नौज में हुआ. हाँ. Is that right यस, to quote? यस मोहित. ऋग्वेद की बात करें, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात करते हैं. लक्ष्मण जी रामायण में सूंग ठीक हुए थे खाकर नहीं. I think a lot of nitrates are used when you want to bring somebody out of a cardiac arrest. हमसे कहा जाता था इत्र मत लगाओ चुड़ैल पकड़ ले. Yeah. आज की जनरेशन कहती है कहाँ चुड़ैल है, पकड़वा तो दो. सर बहुत बढ़िया बात कही आपने. So today we are going to discover what actually is an EDT, EDP, atar, oil fragrances and also aromatherapy. Hello and welcome to Gurgaon Pod. We are today going to focus on a key subject which has been on my emails a lot of times, and that is how we can start our perfumery business. If you are wanting to do a startup on perfumery or fragrances, then this podcast is for you to watch till the end. नमस्कार मेरा नाम है मोहित नारंग एंड वन मोर टाइम आई वेलकम यू ऑल टू गुड़गांव पॉड. Gurgaon Pod is all about recent events and happenings in and around the city and connecting you with the right people that you must know for a better career prospect or a better business connect. I would like to begin by saying a big shout out thanks to Medispa Alchemy for sponsoring today's podcast. Medispa Alchemy is your go to choice for a third party manufacturing or a white label production. In today's podcast, I am going to introduce you to somebody who can be called as the super nose of India. And when we talk about perfumery, you know that a perfect fragrance can make it or break it. And this guy knows it all. In the world of perfumery, small mistakes can lead to big disasters, and big disasters sometimes can lead to big fortune. So, today we are going to discover what actually is an EDT, EDP, other oil fragrances, and also aromatherapy. And I have a very special guest who's not only a guest on the show today, who's also our guru. And let me welcome you, Sir Namaskar. We have Mr. Shukla on the show, and he's representing the MSME department of fragrances and flavor from Kannauj. Sir, namaskar and welcome to the show. नमस्कार. और कैसे हो आप? Very good, sir. Thank you so much for giving us your precious time. और आप कन्नौज से आए हमारे शो के लिए. That is such a brilliant gesture, sir. Sir, in today's podcast, I have just given a little bit of introduction about you. मैं चाहूँगा कि आप अपनी introduction थोड़ी सी हमारे viewers के लिए दें. Thank you, Mohit. Myself, Shakti Vinay Shukla. I'm a director, Fragrance and Flavor Development Center, Kannauj. It's a Government of India autonomous body and which has been primarily made with a tripartite agreement between Government of India, United Nations, and the state government together. Wow. The purpose of setting this organization was that whatsoever research was done in essential oil, fragrance, flavor, that didn't pass to the industry in a proper span of time. Either the technology was too advanced to be adopted by them, or it was in a commercially non-viable form. Looking into this, all the three industry department, Ministry of MSME, from Government of India, United Nations was represented by UNIDO, and state government was represented by Director of Industries. So the state government gave us land and building. UNIDO gave the all sorts of technological support system in the form of technology, in the form of plant and machinery, in the form of an experts, either coming to us and sending the but FFDC people abroad and bringing people from outside. And the government of India from Ministry of MSME was to give all sorts of support services, administrative and financial. As a result, this organization came up in 1991 in Okay. Kannauj, and we have got the 23-acre green campus in Kannauj, and very proudly, I can say this is the only organization
across the world where we have the total value chain, right from cultivation up to development of Wow. fragrances, the flavors. Guys, I have had a recent experience going to Kannauj myself. I was a part of the fragrance and flavor training program, and very beautifully, the course began by seeing the agro side of how the plantation is done to how the natural essential oils are derived, the distillation process, and the refinement. It is an absolute amazing experience. I'm going to give you a link on the FFDC website. You must have a look at this schedule. And maybe if you want to be a perfumer or you have a project in mind, you could be a part of the coming programs. Shakti sir, tell me something. Today, I get a lot of emails, and a lot of people are crazy about starting a perfume brand. And perfumer is not new for the world market. थोड़ा मुझे और व्यूअर्स को ये बताइए, what is the history of fragrances? बहुत बड़ा विषय है मोहित। संक्षेप में करते हैं। लेट्स कि लेट्स गेट अ शॉर्टकट फैक्ट ऑन ये है दैट। कि जब से इंसान पैदा हुआ हुँ, तब से खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होता था। राइट, और कुछ भी दिखा उसको, गुलाब दिखा, चंदन दिखा, बेला दिखा, वो चाहता था मुझे मिल जाए, खाने में मिल जाए, लगाने में मिल जाए, हुँ, पीने में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। उसने गुलकंद बना लिया गुलाब से खाने के लिए, गुलाब की पत्ती और चीनी मिलाकर। हुँ, उसका गुलाब जल बना लिया तो शरबत बना लिया, हुँ, उसके पाउडर बना लिए तो टलकम पाउडर बना लिया। तो राइट। उसको हर फॉर्म में चाहिए था और वो अट्रैक्शन तभी तभी से था। और ये तभी से ये सारी कहानी शुरू होती है और वहीं से जन्म होता है कन्नौज का। सर मैं ये मेरा अगला सवाल होने वाला था क्योंकि जब भी परफ्यूम की बात होती है व्हेनेवर गाइस वी थिंक अबाउट परफ्यूम फ्रांस इज द फर्स्ट थिंग दैट अकर्स टू आवर माइंड एंड वेरी सरप्राइजिंगली a great perfumer from Kannauj is here with us. Sir, what is the history of Kannauj and what is the link with perfumery? वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम कन्नौज की बात करते हैं तो हम फ्रांस को परफ्यूम के लिए जानते हैं और कन्नौज को मैं कहता हूँ हम अतर के लिए, इत्र के लिए जानते हैं। Right. सो द जिसको हम कह सकते हैं अतर का जन्म जो है वो बेसिकली कन्नौज में हुआ. हाँ, इज दैट राइट यस टू कोट? यस मोहित, बिल्कुल। Because a lot of Arabic world claims that others have come from the Arab side of the world. Is that true? नो, Not at all, is नो, it? नो। So, what is कम your research on that? In fact, when I came to Kannauj, taking back my history, I joined this organization since inception in 1992. And when it came, I also heard the same kind of a thing कि ये कुछ एक 200-300 साल पुराना है, बाहर से कहीं से आया है, तो मुझे भी लगा यही है। Hmm. Then slowly I started looking into literature, studying, going deep down into the research. Then I found, this is not the truth. The fact is that if you go little back into our Vedic literature, हम अगर ये देखें तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं पर अब खुशबुओं के। Okay. हम अगर ऋग्वेद की बात करें वहाँ खुशबू का भी रेफरेंस आता है और वहीं से इलाज का भी रेफरेंस आता है। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात करते हैं जो महामृत्युंजय सूक्त में Right. और ऋग्वेद दोनों जगह मिलता है। हम Hmm. तो खुशबू से लोगों का भला होना, वेलनेस की बात तब से कर रहे हैं। Right. दैट इज वन। Absolutely. सेकेंड, लक्ष्मण जी रामायण में सूंग ठीक हुए थे, खाकर नहीं। Yes, and there is a lot of, I think, lot of nitrates are used when you want to bring somebody out of a cardiac arrest. यस। So we have certain ingredients that work very well on inhalation only. तो आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण दिया कि लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी सूंघाने के बाद ही संजीवनी बूटी सूंघाकर ही हाँ जीवित हाँ, अवस्था में खिलाया लाया नहीं गया. था। राइट, खिलाया नहीं था. So there is a lot of botanical evidence in our scriptures. Yes, that is so that these two things were very common. हमें किसी टीवी के म्यूजिक के बैकग्राउंड में किताबों में बहुत जगह मिलता था, वहीं से क्यूरियोसिटी बढ़ी, पढ़ना शुरू किया। फॉर्चुनेटली मैं बनारस से था तो वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स मिले, फादर मेरे वहीं वहीं से थे, तो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। देन आई कुड एबल टू फाइंड नाइट्स फेयरली ओल्ड एंड व्हेन जब वो लिटरेचर ढूंढना शुरू किया तो आई विल साइट एन एग्जांपल
There is a research paper published by Dr. Paolo Ravasti Okay. in 1972, where he publishes into the Dragaco report. Okay. That is one of the company in Germany, perfumery company, which is right now named as Semrise. And in that Dragaco report, Dr. Paolo Ravasti from Milan in Italy says that there is a terracotta distillation apparatus which lies in Takshilia Museum in Lahore in Pakistan. Oh, And if you look into that terracotta apparatus and the distillation way system which you have seen in Kannauj of during your course. अभी जब आप वहाँ थे तब आपने We were देखा talking about the Babka ये system. भपका सिस्टम डेगान Right. that we have seen. So वो सिस्टम अगर आप देखो एंड ये apparatus देखो तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि सिर्फ वो टेराकोटा से मेटल तक आया. आपने जो देखा वो कॉपर था, आपको याद होगा. Right. तो कॉपर तक आया क्योंकि हम पास्ट में स्टोन एज से मेटल एज तक गए. Yeah. तो वो टेराकोटा apparatus इंडस वैली एक्सकवेशन में मिला था. So it एंड is as old as that. यस, तो अगर इंडस वैली एक्सकवेशन में मिला तो दैट्स क्लियरली इंडिकेट्स दिस इज 5000 ईयर प्लस ओल्ड. And that makes India one of the oldest place where distillation and making other making was known. Sir, is it also true that lot of ingredients are exported to France from India, which are bottled as our favorite perfumes? Yes, no doubt. मोहित, बहुत अच्छी बात कही आपने. ये जो यहाँ से नेचुरल चीजें जा रही हैं और फिर री इम्पोर्ट हो रही हैं. Right. I was coming to that topic. Yes. Yes. So what are the larger perfume ingredients that India is known for? अगर हम लार्जर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इन द पास्ट वी वर नोन फॉर सैंडलवुड ऑयल Of which are course. said to be the fragrant ambassador of India. Yeah. That is one. Over a period of time, this scenario changed. आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मिंट, Hmm. पूरी दुनिया का 90% मिंट इंडिया में पैदा होता है. Hmm. और हम पूरी दुनिया को सप्लाई देते हैं. मिंट के अलावा अगर हम स्पाइसेस की बात करें, कार्डमम की बात करें, ब्लैक पेपर की बात करें, टर्मरिक की बात करें, जिंजर की बात करें, इन सारी चीज़ों की बात करें तो ऑयल भी और इनके ओलियो रेजिन्स भी हम ही देते हैं दुनिया को. इंडिया को ज्यादातर इंडिया से हम लोग ही दे जाता रहे है. हैं. दैट इज वन. Right. इसके अलावा रोज अब्सोल्यूट, ट्यूबरोज अब्सोल्यूट, जास्मिन, सैम्बैग, ग्रैंडीफ्लोरा जो आपने Right. क्लासेस में भी देखे. तो Right. ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें भी इंडिया बहुत वेल नोन है. Right. एंड नाउ स्लोली इंडिया इज कमिंग अप. ये द फ्यू अदर एरियाज जिन दूसरे एरिया में इंडिया बहुत ड्रास्टिकली ऊपर आ रहा है उनमें वेटिवर है, खस जिसको आप कहते हो. Vetiver is becoming so popular now. यस, Wow. Yeah. दैट इज. लेमन ग्रास में हम पिछले थोड़े दिन में सेल्फ सफिशिएंट हुए. दैट इज वन. अगरवुड is coming as another emergent area. So, guys, what also Shakti sir is in Delhi is also to do a great work that he's been working for many years now, presenting the BIS standard on agarwood with the ministry. Sir, tell us more about that. That's very interesting, Mohit. In fact, we are working and based on the recommendation and the project given by the Tripura government to us. It was all based on. I visited there while designing and getting launched the 5 perfumes which we made on 5 rivers of Tripura. And during that course, I had a discussion and I asked कि सर अगरवुड ऑयल का तो स्टैंडर्ड ही नहीं है. लाओस, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडिया सब बनाते हैं, लेकिन अगर आप आईएसओ स्टैंडर्ड ढूंढो, आप गूगल करो, There is no एआई तो standardization. स्टैंडर्ड नहीं है. Correct. तो हमने कहा सर स्टैंडर्ड नहीं है. तो उन्होंने, सर ने कहा कि भाई क्यों नहीं. हमने कहा सर किसी ने बनाया नहीं. बोले आप क्या बना सकते हैं. हमने कहा हाँ सर. एंड इट्स इमीडिएटली इट्स ओवर कप ऑफ टी. ही सेड कि ठीक है आप इस पर काम कीजिए, जो जरूरत होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे. So, maybe tomorrow, I think, is the big day when you are presenting the BIS standard. Yes. In fact, BIS standard has been made, but I will be talking about that in tomorrow's summit, which we are organizing with
Chemexil and Bureau of Indian Standard, or all industry association like PAFI, EOI, and Aroma Federation and Sugandh Vyapar and other R&D institutions. So I will be presenting that work, but it is in its final stage. Wow. And is it what we call it as a P draft for circulation, and we are awaiting comments from the people. And once done, definitely after a month or so, India is going to be the first country to have standard for agarwood oil. Wow. So, guys, see, a department of fragrance and flavor development from Kannauj has worked their way out, reaching to white papers on international boards and tables where we are setting up standards on key ingredients. And one of the most experienced person is with us today. We are talking about the BIS standards. Sir, tell me something. Taking this discussion forward, now I'm coming to the consumer point. A lot of consumers will not understand technicality Yes. till the time they attend courses from you guys. Yeah. uh, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम एक परफ्यूम बिजनेस में आए, एंड समटाइम्स आई लाफ इट ओवर. आपके साथ भी कई बारी चर्चा हुई, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ फ्लडेड मार्केट. हाँ. एंड सर, एक तरफ तो बहुत छोटे परफ्यूमर्स हैं, 300-400 रुपए की रेंज है, और एक तरफ फिर 8-10 हज़ार के परफ्यूम्स हैं. द मिडल इज टोटली वेकेंट. इज दैट द राइट मार्केट टू पिच फॉर इंडिया? I'll just take couple of minutes from you to first break down for my viewers कि परफ्यूम बिजनेस कहाँ से शुरू करना है. ओके, तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि विच इज अ गुड प्लेस टू प्लेस योर प्रोडक्ट. इफ यू टारगेट ऑडियंस कहाँ लेना चाहिए? मोहित, सिंपल है. ऑडियंस हर रेंज की है, और इतना बड़ा देश है 145 करोड़ का ना, हमें तो सबको खुशबू से नहलाना. No, that is correct. But my question clearly to you Yeah. is that that there is a wide variety of Yes. people who are supplying low pricing, low MRP, and then obviously these French brands that come up with 10,000 plus ingredients, and they have an expensive line. So luxury is one market and the small one. What is your way of communication to the younger audience who's wanting to do a startup? Simple. They need to search their target audience, and look into the people around them in their community, in their society, and do out a little market research, that to whom they can approach easily. And probably what you said just a minute before, that there is a gap. Either it's a damn cheap, but like, again, when you say a very damn cheap, a market something around 200, 300, or 400 rupees, majority of that market is unorganized, Correct. in a number of cases even without license. Yes. वो घर पर ही बना लेते हैं. Which और is which हाँ, is वो obviously मतलब not कहीं से, acceptable. There is और no कई बार standard. उन्हें पता भी नहीं है मोहित कि वो कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं, लीगल है या नहीं है, ठीक चीजें डाल रहे हैं कि नहीं. तो इसलिए वो बहुत सा सस्ता बेच लेते हैं, और आपने तो 300-400 थोड़ा ज्यादा बताया, इससे भी नीचे का उपलब्ध है. Wow, really. तो So, guys, the first point to take care here is that identify your customer, identify your target audience, and also understand that what kind of licensing is required for having your kind of a setup. Is that right? यस, वेरी वेरी करेक्ट. तो एक तो ये कि वो आप ये ढूंढो कि किस तक आप पहुंच सकते हो. Right. हर रेंज के लोग हैं, तो अगर सिस्टमेटिकली आप प्लान करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अगर इनको हमने प्रॉपर पैक करना है, बॉटल करना है, और प्रॉपर प्रोडक्ट डालना है, तो ये कॉस्ट आएगी, और ये मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट है, पहुंचने की कॉस्ट है, और Right. वो आपका कस्टमर देगा अगर वो थोड़ा सा आपने होमवर्क किया. क्योंकि टाइम बदल रहा है. Hmm. जब हम स्कूल पढ़ते थे तो ये सिचुएशन नहीं थी. Hmm. हमसे कहा जाता था इत्र मत लगाओ, चुड़ैल पकड़ लेगी. Guys, if you have been watching a lot of spiritual podcast, सर ने बहुत बढ़िया बात कही. क्या परफ्यूम लगाने से भूत चुड़ैल तो नहीं लग जाएगा? नहीं, Yeah, that is a very नहीं, interesting thing to say. तो तब कहा जाता था कि चुड़ैल पकड़ लेगी. Yeah. आज की जनरेशन कहती है कहाँ चुड़ैल है, पकड़वा तो दो. सर बहुत बढ़िया बात कही आपने. Yeah. तो
कहने का So the मतलब times have changed. टाइम बदल रहा है। Preferences, yeah. अगर हम 25-30 साल पीछे जाएं मोहित ना, और 10 लड़के लड़कियां सेलेक्ट कर लें Mm, जो 15-17 साल से ऊपर हों, 25 साल तक के हों, mm, शायद हमें एक मिलता जो ब्यूटी पार्लर जा रहा होता और कॉस्मेटिक लगा रहा होता। जेंट्स के पास जो बहुत रिच थे, mm. जो बहुत रिच थे, ले दे के एक आफ्टर शेव हुआ करता था जिसको हम ओल्ड स्पाइस Old Spice. के नाम से जानते थे। Yes. नहीं तो आम जेंट्स तो कोई क्रीम लगा के, बोरलिन जैसी क्रीम लगा के दाढ़ी बनाने के बाद निपट लेता था या पिटकरी लगा लेता था। I think Old Spice, Brill Cream, and Nivea were the three go-to बस for मैक्स men. मैक्स मैक्स नहीं, Maximum. ये तो रिच लोग थे। Yeah. वरना तो फिटकरी लगा लिया Fatke और बोरलिन लगा लिया, उससे Right. काम हो गया। और लेडीज के पास घर में एक फेयर लवली होती थी, इसके बियॉन्ड कुछ होता नहीं था। बहुत ज्यादा ऊपर बढ़े तो वीको टर्मरिक क्रीम जैसी कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आ गया। मतलब कहने का मतलब ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते थे, ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे, Right. शायद कोई एक मिलता। आज The आप trend is different. अगर 10 को ढूंढोगे ना 15 से 25 की एज में आपको शायद कोई एक ऐसा लड़का लड़की मिले जो ब्यूटी पार्लर नहीं जाता हो या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करता हो। सिनेरियो हैज चेंज्ड। Absolutely. So, guys, what Shakti sir said made a lot of sense that the landscape of demand has totally changed. And thanks to the internet, which is making the world a smaller place and opening up to ideas and opening up to so many other avenues. Sir, एक बात और बताइए. बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है. Since I told them that I'm going to do a show with you, I have a lot of questions coming in on my group, on my WhatsApp chat. They want to know, a lot of people today sell either pure oil made elixirs, higher than perfumes, or there are synthetic fragrances. And one very popular open market, gray market, that has opened up, that portal is where people say that this is an inspiration perfume. किसी बड़े ब्रांड की कॉपी है, राइट? व्हाट इज योर कमेंट? हाउ अ न्यू स्टार्टअप should aim at? Should they go for an inspiration copy, which I don't approve in my own sense, but from a business perspective it could work for a lot of people. And then there is using the real oils, and then there is synthetic fragrances. So now एक तो बात हुई लोगों के प्रेफरेंस की और मार्केट कैसे लैंडस्केप चेंज हुआ, अब आगे बढ़ने की दिशा आप कौन सी दिखाएंगे? कारण ये है ना, एक मोटी सी बात अक्सर लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम्म. तो जब हमें पता ही नहीं है हम्म. कि क्या है, तो जो हमें पता है वही हम मांगते हैं। ओ. मोटी सी बात है कि भाई जो परफ्यूम हमने कहीं देख लिया या सुन लिया, हमें से बहुत सारे लोगों ने वो इंस्पायर्ड जो बड़े ब्रांड हैं हमने नेट पर देखे हैं। Yeah, we've never used them. मतलब बॉटल छुई भी नहीं है, हाँ. लेकिन सुना है नेट पर, सोशल मीडिया पर कि ये बड़ा वाला ब्रांड है, महंगा वाला ब्रांड है, बड़े बड़े लोग लगाते हैं, हमें भी वही चाहिए। हमें ओरिजिनल भी नहीं पता, बस नाम सुना और अगला आदमी कहता है ये उसका इंस्पायर्ड वर्जन है, हम खरीद लेते हैं। हम्म. बस इट इज मोर फॉर दैट रीजन। लेकिन होता क्या है कि वो सच क्या है हमें पता नहीं, तो उसके नाम पर वो बेच रहे हैं। कई बार जो लॉन्च कर रहे होते हैं जो 400-500 रुपए का परफ्यूम, उन सब ने भी वो सारे वर्जन नहीं देखे होते ओरिजिनल। Hmm. Right. उन्होंने भी नहीं देखे और खरीदने वाले भी नहीं देखे, ने भी नहीं देखे। लेकिन होता क्या है, एक बंदा वैसा निकालता है 800 का, अगला बंदा 700 का निकाल देता है, Hmm. अगला बंदा 550 का निकाल देता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके खर्चे कितने कम है। तो कुल मिलाकर आपको लगता है आप एंटरप्रेन्योर हो, सच्चाई में तो आप किसी की नौकरी कर रहे होते हैं। Yeah, because you're just doing trading, यस यस right? आपको लग रहा है कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। प्रैक्टिकली आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो। आप किसी की बोतल, किसी का डब्बा, किसी का परफ्यूम एक सर्टेन परसेंटेज के बियॉन्ड बेचने की हालत में रहते ही नहीं हो। Hmm. आपका कुछ इनोवेशन नहीं होता। बाजार वाले कहते हैं सर ये बोतल बिकती है, ये डब्बा बिकता है, ये परफ्यूम बिकता है, आप तीनों को इकट्ठा करके बेचने लगते हो। प्रैक्टिकली आप एक ट्रेडर जैसे हो। You're just collaborator. यस। So, guys, a very interesting moment in our conversation. If you have the right bottle, if you have the cap, if you have the outer carton, if you have the box, you have a perfume supplier, you have the right alcohol, and you have a company to fix everything for you, you are still not a perfumer.
Am I right? Yes. So नहीं नहीं, very so very. it's a very well aggregated project, so my certain questions, coming Yes. back again, um, but हर perfumer कहीं से तो अपनी journey शुरू करेगा, हाँ. right? So my question to you is that where do you see the gap? Like a lot of synthetic perfumes in the market, right? And we use synthetics obviously, and a lot of people today, out of consciousness, they're asking for real products, real essential oils. So what is your suggestion on that? देखो, एसेंशियल ऑयल लेने में कोई बुराई नहीं है, Hmm. सिंथेटिक परफ्यूम्स लेने में भी बुराई नहीं है, जब तक वो नुकसान नहीं कर रहे। अगर हम सही प्रोडक्ट सही डोज लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है। अगर सही चीज़ और सच्चाई है कि कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, नुकसान करती है उसकी डोज लेवल। कम ले रहे हैं तो दवा है और ज़्यादा ले रहे हैं तो दारू है। Wow, excellent. Sir, एक बात बताइए, I've heard a lot of people talking about the subject of hormone disruptors. Are there any ingredients in perfumes that can disturb your hormones? कुछ मटेरियल्स के लिए कहते हैं और उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड काम कर रहा है और आई एम अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी इज नोन एज PCD 18 फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। Okay. तो उसके लिए काम कर रहे हैं और वो चीज़ों की अभी एक लिस्ट आई है, प्रोहिबिटेड लिस्ट आई है और भी आगे आगे उस पर काम चल रहा है। तो धीमे धीमे वो चीज़ें वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आई है। रिसेंटली मैंने एक बुक भी लिखी है, फ्रेग्रेंट रेगुलेटरी लैंडस्केप, जिसमें मैं हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च से डॉक्टर AB पंत और आशीष द्विवेदी हमारे साथ को ऑथर हैं उसमें। Wow. तो वहाँ से बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर हम आपके उस सवाल की बात करें जो आप पहले कह रहे थे, अगर हम कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, वाकई में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ 2-3 बातों का अगर वो ध्यान रख लें। पहली चीज़ कि आप जो कह रहे हो, क्योंकि आपकी मार्केटिंग टीम जाकर बाजार में कुछ बोलेगी, Right. तो जो बोलेगी वो डब्बे पर दिखना चाहिए। Okay. मतलब आपका जो डब्बा है वो रिप्रेजेंट करेगा उस बात को। Yeah. So, for example, I'm talking about floral. So, it must have a floral representation. रिप्रेजेंट तो डब्बे पर कहीं तो दिखना चाहिए ना। मतलब आप फ्लोरल कह रहे हो और डब्बा ऐसा कुछ है जहाँ कहीं फ्लोरल प्रेजेंट नहीं हो रहा। Or maybe woody. हाँ, ये वुडी रिप्रेजेंट कर रहा है। Yeah. ब्राउन कलर का डब्बा है, उसपे ब्राउन कलर की लाइनिंग्स बनी हुई, तो फ्लोरल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नंबर 1। तो जो आप कह रहे हो डब्बे पे दिखे और जो कह रहे हो जो डब्बा खुले तो बॉटल में दिखे। Right. और उसके बाद जो आपने कहा था वो बोतल के अंदर से निकले। Hmm. So, the story matches. अगर ये तीनों सिंक में नहीं है Hmm. तो आपका डूबना तय है। Guys, this is an important discussion. If you're looking to make a perfume, don't leave this podcast till the end. यस। Sir, let's तो continue. अगर आपने कहा, जैसे एक परफ्यूम आता है, आप कहते हो स्वाद द पेरिस, Hmm. इवनिंग ऑफ द पेरिस, तो पेरिस के शाम का तेल थोड़ी निकालेंगे। इट्स अ फील। It's a feel. फील। या कोई गाना गाता है तो वो कहता है ना कि भोर भई या सांझ भई, Hmm. तो फील आनी चाहिए। तो जो भी आप परफ्यूम में कह रहे हो, या पॉइजन था फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पॉइजन का मतलब जहर थोड़ी लगाने को दे रहे हैं हम आपको। इट्स अ शॉक गिवन बाय द मोनोटोनस टू द मार्केट विच वाज गोइंग ऑन। तो हम जो भी कह रहे हैं वो अगर परफ्यूम में प्रेजेंट कर पाएंगे तो हमें बेचने से कोई रोक नहीं लेगा। I actually once you were talking about it, मैं imagine कर रहा हूँ poison की bottle and the kind of colors that the bottle has. यस। I think it has been designed by Baccarat, the glass company, and the kind of snake around it, and the whole character of the whole thing is very, very, it gives you a feeling that you're going to use something with caution. Yes. In fact, what they did, the market was going monotonous. Okay. So they want to give a shock to the market. To give a shock to the market, what they did, they designed a little unusual kind of a perfume. And for that, they used tuberose with an overdose of alpha damascone. Oh, So it was a tuberose making exceptionally fruity. 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 Yeah.
floral and fruity, Yeah. and they put the entire product into a bottle where the alchemist used to put poison in their lab. Really? Yes, if you look the bottle, वो वही बॉटल है जिसमें वो जहर रखते थे लैब में, तो वहां से वो फील आई आपको, वो फील आई, जहर था नहीं। Yeah, yeah. और वहीं से मार्केट का जो मोनोटोनस इम्पैक्ट था वो ब्रेक होना शुरू हुआ। तो मेरा कहना यही है मोहित कि हम वो एक चीज कहना चाहते थे, पॉइजन कहा तो शौक लगा, Hmm. ठीक है। तो सिमिलरली हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं, हम किसी शहर को, आपके किसी शहर को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, हम सुबह बनारस कहें, शाम अवध कहें, या किसी और शहर शहर की कोई खासियत, वो जिस भी शहर के आप हो, वहाँ की कोई ना कोई खासियत होगी, उस जगह पर कोई मॉन्यूमेंट होगा। आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करो, उसकी स्टोरी को रिप्रेजेंट करो, लेकिन वो फील अगर आप दे पाते हो, डब्बे से बोतल तक, बोतल से अंदर तक, होता क्या है, एक अच्छी सी बोतल जो आमतौर पर इंडिया में लोगों का नोशन है कि हम कहीं से लेंगे, एक नया बंदा काम करने वाला होता है, उसकी दिक्कत क्या होती है, उसको थोड़ी सी बोतल लेनी होती है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ऐसे उस चेन में जाकर अटकता है जो चाइना से कहीं से आ रही होती है। Of course. तो उसको बोतल मिल जाती है, एक अच्छी सी बोतल ढूंढ लिया, 10-20 लोगों को दिखाया, उसने कहा हाँ ये बोतल अच्छी है। फिर किसी के पास क्या, नहीं मुझे डब्बा बड़ा लग्जरी चाहिए, तो डब्बा डब्बा लिया, बड़ा थिक डब्बा लिया, कुछ Hard उसमें box. हार्ड बॉक्स लिया, Yeah. उसमें कुछ मेटल वेटल का भी काम करा दिया, रिचनेस आ गई। Yeah. फिर एक परफ्यूम के लिए गया, उसने 25-30 परफ्यूम दिखा दिए, उसमें से कोई ना कोई आपको अच्छा लग गया, आपके दोस्तों को अच्छा लग गया, बस आपने कहा इसको भर दो, और उसको भर दिया और बाजार में बेचने निकल दिया। तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, न डब्बे का, न बोतल का, न परफ्यूम का। That's why people can't connect to the Yes, fragrance. and when they don't connect, they Hmm. don't remain connected with you. True. So that is why, guys, there is a lot of psychological research behind all the brands that are your favorite, and you continue to repeatedly buy them because there is a story that connects emotionally to your own story. And that is the perfect example of your favorite perfume and your repeated purchase of that perfume, right? Yes. So, sir, tell me, one, we've understood that we've got to identify the right audience and where we're aiming at, Yeah. and subsequently we're going to create a story around it, and the box, the packaging, and the fragrance inside it has to be in perfect sync, Yes. right? Beyond that, give me two do's and two don'ts when designing a perfume. Again, when you are doing it, again it should be from whom you are buying. Try to understand, is he or she is really a perfumer, a designer? You need to connect to a right person who knows perfumery. So try to look into the person from whom you are buying. Must be a perfumer. A perfumer, that is one. And perfumer and compatible with and comfortable with your MOQ. Sir, I'm breaking you here. How many perfumery schools are there in India? If you talk about, again, I will take it question other way around. Okay. Mohit, there are few R&D institutions, those who work on essential oils. Then there are few institutions, those who are working on aromatic plants, जो Right. उस पर काम कर रहे हैं. But if you talk about strictly those who are teaching perfumes, there is one organization called ICT Mumbai. They have been doing their MTech in perfumes and flavor technology, Okay. giving the highest degree. There is another organization called Kelkers College in Mumbai. They do a 2 years postgraduate diploma in perfumery and cosmetic management. It's a 50% management and the rest in 50%, 50% is a cosmetic and perfumery. Something very close to what is being done by Izipka in France. So these are the two institutions. Then there are a few R&D institutions by CSR Lab, those who are doing uh, basic fundamental research in aromatic plant cultivation, varietal development, essential oil production, these kind of a thing. Right. Then, if you look strictly into designing fragrance and flavor, Right. and
doing the total value chain, right from plant to perfume. From botanical to end product. यस, खेत से खुशबू तक की अगर हम बात कहें तो पूरी दुनिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जहां आप खेती करने के बारे में, उससे तेल निकालने के बारे में, जितने मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं। Sure. आप डेक भपके की बात करो, आप फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट की बात करो, आप स्टीम Steam डिस्टिलेशन यूनिट की distillation. बात करो, आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करो, आप फ्रैक्शनेशन की बात करो, हाइड्रोजनेशन करके केमिकल्स बनाने की बात करो, रिएक्शन वेसल्स की बात करो, वो सारा कुछ, और फाइनली उसको असेस करने की, क्वालिटी असेस करने की बात करो, तो जहां पर क्वालिटी असेसमेंट लैब है, और इंडिया की सबसे पुरानी लैब है। GC and GCMS that you do. नहीं, जीसीएमएस तो सब लैब में मिलेगा। वो लैब इंडिया की ओल्डेस्ट एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है, फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज की, जहां आप सारी चीजें टेस्ट करा सकते हो, और एनएबीएल एक्रेडिटेशन 1998 से है, जब से इंडिया में आया तब से है। Wow. और हम वो सारी चीजें टेस्ट करते हैं, एंड देन फाइनली हमारे पास ही वो फैसिलिटी है जो किसी के पास नहीं है, जहां हम फ्रैग्रेंस फ्लेवर डिजाइन करते हैं, हम सिखा भी देते हैं, बना भी देते हैं, और हमारी पूरी अप्रोच डिमांड ड्रिवन है, नॉट द सप्लाई ड्रिवन। Wow. So, guys, you just heard him that one and only institute in the country that starts from plantation, takes you to distillation process, and then mixing up with your favorite ingredients till the time they are bottled and marketed. And that is FFDC. What a great job, sir. Thank you, Mohit, but I just add what you have said, that it is in the country, but they don't teach you different cultivation aspect, different processing aspect. Right. There are other institutions, those who are teaching you cultivation and processing, they are not into the perfumery. जब तक आप एक छत के नीचे सारी चीजें So नहीं your सीख। basically your ecosystem is Yes, totally yes, complete. yes. So it's a complete ecosystem is what we are trying to say. Great, sir. Next to our list is to understand that what, for example, we're designing a luxury perfume now. Okay, what kind of a base note, middle note, and a top note is recommended, because there are certain fragrances that smell expensive, and there is a reason why something smells cheap, and it is not about MRP. Sometimes people tell me that, okay, I'll give you two items in a bottle and you test them separately, and I do that a lot of times, but there is a certain element of expensiveness in a perfume. Does it come from just using natural products, or is there a fair play where something smells more expensive? One thing is no doubt, definitely natural play a great role. There is no doubt, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। Right. लेकिन डिफरेंटली हमारे लिए एक्सपेंसिव वही होता है जो रेयर होता है, Right, of course. जो नहीं मिलता आसानी से, वही वही expensive. महंगा है। Correct. फैक्ट यही है। इट्स जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो जो हमें नहीं मिला, जो हमने नहीं देखा, जो मुश्किल से मिल रहा है, वो महंगा है। सो देर आर नंबर ऑफ मटेरियल जो हमने नहीं देखे, या पहली बार देख रहे हैं, या हमने पहली बार किसी महंगे परफ्यूम में देखे, हमें वो महंगे लगते हैं। या ऐसे रॉ मटेरियल जिनको हम जानते हैं महंगे, जैसे रोज ऑयल एक्सपेंसिव है, हम जानते हैं 12 लाख रुपए किलो का है। जैस्मिन एब्सोल्यूट 4.5-5 लाख रुपए किलो का है। सैंडलवुड अप्रोक्सीमेटली Similar price. 90,000 एक लाख रुपए किलो का है। ट्यूब रोज ऐसे ही एक्सपेंसिव है। ऊद ऐसे ही 12-14 लाख रुपए किलो का है। तो वो उनको जब उनका प्राइस हम जानते हैं, And now Agarwood. हाँ, नाउ अगरवुड, ये अगरवुड या ऊद एक ही Yeah, बात है। yeah. तो जब उनकी स्मेल हमें आती है तो हमें लगता है ये महंगा है। एक वो स्मेल कई बार हमें नेचुरल से भी मिलती है, या नेचुरल को रिकॉन्स्टिट्यूट करके, जैसे हम लोगों ने, आप जब क्लास में थे तो डिस्कस भी किया था कि हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, तो भी लगता है। तो अगर वो सही प्रोडक्ट होता है और सही कॉम्बिनेशन में होता है, तो ही वो एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि Right. केवल होने से काम नहीं होगा, उसका प्रेजेंटेशन। जबकि एक बड़ी कॉमन सी बात अक्सर हम कहते हैं ना कि इंप्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन विल लीड टू डिप्रेशन। Hmm. तो अगर वो जो है वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाए,
राइट, वो नोट तो थी, लेकिन सही जगह पर प्रेजेंट नहीं करी आपने। राइट। तो सही चीज को सही जगह अगर आप प्रेजेंट कर ले जाते हो, वही पूरे कॉम्बिनेशन है, उसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। अदरवाइज आप कोई भी चार अरोमा केमिकल, कोई चार एसेंशियल ऑयल किसी भी रेशो में मिला दो, खुशबू तो आएगी। तो सर आपने एक सवाल किया था, मैं आज पॉडकास्ट में आपसे एक सवाल यही दोहरा रहा हूँ आप ही का सवाल। इज़ द परफ्यूमरी बिज़नेस साइंटिफिकली ड्रिवन और इज़ इट एन आर्ट? इनफैक्ट जब ये शुरू हुआ था, हुँ, आपको याद हो, बहुत पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जब परफ्यूमरी शुरू हुई, जिसको हम मॉडर्न परफ्यूमरी की शुरुआत कहते हैं, राइट। ना कि हेरिटेज इंडियन परफ्यूमरी की, तो ये पर्सनल परफ्यूमरी थी। हुँ, और लोग कुछ एक एसेंशियल ऑयल को आपस में मिला के अल्कोहल में डाल के लगाते थे, सिंपल था। वहाँ कोई रिएक्शन होने की चांस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टाइम बदला, और टाइम बदलने के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं, और आज हम रूटीन पर्सनल परफ्यूमरी से धीमे धीमे शिफ्ट हो चुके हैं फंक्शनल और इंडस्ट्रियल परफ्यूमरी पर। करेक्ट। हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। हुँ, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम नॉर्मल रबड़ इस्तेमाल करते थे। आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सेंटेड रबड़ चाहिए, या बबल गम फ्लेवर, बबल गम चाहिए, या वो चाहिए, चॉकलेट चॉकलेट चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे जगहों पर परफ्यूम इस्तेमाल होने लगा। हम जब छोटे थे तो एक फिनाइल आती थी, वही टॉयलेट में, उसी से ड्राइंग रूम में पोछा लग जाता था। राइट, आज 10 तरह के क्लीनर्स हैं। राइट। मोबाइल के लिए अलग है, आपके टीवी के लिए अलग है, घर के हाउस होल्ड्स के लिए अलग है। तो सिनेरियो बदला, हम फंक्शनल परफ्यूमरी पे आ गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गए। अब हम लेदर में भी परफ्यूम डालते हैं, राइट। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डालते हैं, कार फ्रेग्रेंसेस। कार में डालते हैं। तो जब इतना वेरिड वर्जन आया, हम ऐसे प्रोडक्ट में डालते डालते हैं जो एसिडिक है, हुँ, ऐसे में डालते हैं जो अल्कलाइन है, कहीं गर्म हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है। तो इस सिनेरियो के चलते जो बैकग्राउंड था, अप्रोच थी, वो शिफ्ट हुई, हुँ। और वो शिफ्ट आर्टिस्टिक अप्रोच से शिफ्ट होते होते साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ी। So we've still not got an answer. In one simple way, is it an art or is it a science? तो अब सिनेरियो शिफ्ट हुआ। तब आर्टिस्टिक अप्रोच खत्म नहीं हुई मोहित, वो है, और Yeah. वो खत्म होगी भी नहीं, ये उसके जानते हैं। बिना तो सब उसके बिना फिनिश हो जाएगा। नहीं, अगर वो खत्म हो जाएगी तो रोज नया नया कुछ नहीं मिलेगा, Yeah, exactly. वो एक ही जैसा मिलेगा, मोनोटोनस मिलेगा। हम कुछ स्ट्रक्चर सिस्टम बनाते हैं और आर्टिस्टिक अप्रोच से उसको बदलकर फिर कुछ बनाते हैं। तो हर कल तक जो 4 दिन चलता है, वो सिस्टमैटिक रूल लगता है। 5वें दिन कोई नया नया कोई आता है, उसको ब्रेक करके कुछ नया नया कुछ बना देता You know what I answered in when you asked this question? I said it is the science of blending art in a bottle. So, है। and you wrote it as a very diplomatic answer. But guys, it is absolutely true that you need to understand the science of blending the right proportion and the right ingredient in a bottle, and that is exactly the art of creating perfumery. Yes. So coming back to what you said, Mohit, earlier it was dominated by the artistic approach, but definitely there was a sign. हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, केवल नेचुरल्स थे, सिंथेटिक्स थे नहीं। सिंथेटिक्स तो बहुत बाद में आए, जब कुमरीन और हिलोट्रोपिन बने और पहला परफ्यूम रॉयल फ्यूजर बना, उसके बाद की कहानी जन्म लेती है। तो सिनेरियो बदला, तब आर्टिस्टिक अप्रोच डोमिनेट कर रही थी और साइंटिफिक अप्रोच उसका उसको पीछे सपोर्ट कर रही थी। अब सिनेरियो पलट गया, Hmm, अब साइंटिफिक अप्रोच आगे चल गई, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, hmm, बहुत बहुत सारे सिंथेटिक केमिस्ट आ गए, वो रोज एक नया अरोमा केमिकल बनाते हैं। आज की तारीख में अगर हम ग्लोबली बात करें तो लगभग 9,000 से ऊपर, इवन हम लोगों ने फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एफएफडीसी ने मिलकर एक बुक भी छापी थी, जिसमें हमने बताया 9,000 के आसपास ingredients. इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। उसमें नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी है, मेजॉरिटी इज सिंथेटिक। तो बहुत सारे, और हर रोज नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दैट Of इज वन। course. कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई। Hmm, पहले हम केवल
डेगन भपका जो आपने कन्नौज में देखा, हम उससे डिस्टिल करके तेल निकाल लेते थे। टाइम बदला, डेगन भपके के बाद डिस्टिलेशन यूनिट्स भी आई, जो आपने विजिट भी की थी, ऑफ स्टीम कोर्स। डिस्टिलेशन यूनिट। यस। और कन्नौज में सबसे ज़्यादा कुछ 23 स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट है, और इंडिया की दूसरी स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट, पहली कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट के पास 1920 में आई, और सॉरी 1919 में आई, 1919 में, एंड सेकेंड यूनिट केम इन कन्नौज इन 1920। और उसको देख के और 22 यूनिट्स प्रोटोटाइप बने, उसको देख के बने, तो स्टीम डिस्टिलेशन आ गया। फिर फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट्स आ गई जो बिना बिजली के भी चलती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का सिस्टम आ गया। राइट। अभी रिसेंटली सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन आ गया, जिसपे आज भी डिबेट चल रहा है, और उसके बाद माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन आ गया। तो टेक्निक्स रोज निकलती नई नई चली चली आ रही हैं, हम उनसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अलग अलग मेथड है, तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। और कमोबेश वही बात है जो हम कई बार हमने क्लास में बताया था ना, कि हम रॉ मटेरियल एक ही होता है ना, थोड़ी सी प्रोसेस बदलते हैं तो कहीं रोटी बनती है, कहीं पराठा बनता है, और पूड़ी 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 बनती है। तो एब्सोल्युटली। अलग अलग प्रोडक्ट बनने लगे, वैरायटी वैरायटी हमारे पास वैरायटीज वैरायटीज आ गई, और उनको मिला के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगे। तो यहाँ पर साइंस डोमिनेट करने लगी। तो आज की तारीख में जिसके पास वो बैकअप है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास आर्ट का बैकग्राउंड है तो आप बना नहीं सकते, ऐसा नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट में, जैसा हमने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था, उनके पास आर्ट का बैकग्राउंड था, लेकिन आके वो साइंटिफिक ढंग से पढ़े, साइंटिफिक बैकअप से पढ़े एक या। एक साल के कोर्स में, और आज की तारीख में उनमें से कोई रवांडा है, कोई इंडोनेशिया है, कोई दुबई में स्टर्लिंग में है, कोई आइबर केम में है, कोई बेस नोट में है, और बहुत सारी जगहों पर वो हम इस इंस्टीट्यूट की खुशबू बिखेर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं। तो अब सिनेरियो सिर्फ इतना बदला है कि पहले आर्ट था, साइंस बैक में सपोर्ट कर रही थी। आज की तारीख में साइंस आगे थोड़ी जा रही है, और आर्टिस्टिक अप्रोच है, बनेगा उसके बिना नहीं। दैट इज, आई होप दैट यस। क्लियर्स द हेज व्हाट यू हैव आस्क्ड। Okay, so we have still that question left. What are the two things do's while designing and don'ts while Okay, creating a product? very true. Number one, while designing, one should take care that there should be a proper s- sequence and percentage of top, middle, and the base note. Okay. That's one school of thought I'm talking. There are a few other school of thoughts which we discussed, like monolithic, and there are a few more, but I'm talking in the common language which most of our Viewers will viewers understand. knows it. Yeah. तो टॉप मिडिल बेस नोट का, बिकॉज हमें चाहिए क्या होता है, Right. हम यहाँ बैठे हैं, वहां तक खुशबू जाए, Right. और आज लगाया है तो कल तक शाम रहे। तक भी रहे और कल तक रहे। और जब आयरन कर रहे हैं, या कपड़ा धोने के बाद आयरन कर रहे हैं, या अलमारी में टंगा है, तो भी खुशबू आए, तो पूरा पैसा वसूल जो फील है, That वो comes like that. दैट, तो उसके लिए उसको रुकना चाहिए। Hmm. Long और stay. ये लॉन्ग स्टे, लॉन्गेविटी जिसको हम कह रहे हैं। Hmm. दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, जैसे आप कमरे में आते हो, यू गेट अ फील, क्या है, Yeah. What happened here? यस, तो कुछ है, तो कोई निकल जाए तो लगे कि हवा का झोंका सा निकल गया। Like we walk in Dubai Mall, guys, and every time an Arab guy will cross you, you will say, "Wow, यस, I need this." यस, Yeah. तो रुकना भी चाहिए Yeah. और फैलना भी चाहिए। Right. अगर रुकेगा तो फैलेगा कैसे, और फैलेगा वहां तक तो रुकेगा कैसे? ये दोनों साइंटिफिकली कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन यही चाहिए होता है हमारे कस्टमर को। अब इसके लिए आपको एक बैलेंस बनाना होगा। Right. तो उस बैलेंस के लिए आपके पास टॉप नोट मटेरियल होने चाहिए, लाइक Right. लाइम, लेमन, ऑरेंज, मैंड्रिन, टैंगरीन, बर्गामोट, मिंट, केवड़ा लाइक मटेरियल, जो उसको लिफ्ट करके ऊपर लाए। Right. एक, then you need a base load material like sandalwood, vetiver, oak moss, patchouli, number of resinoids, a number of other heavy That molecules can hold up to the that can hold fragrance. up. Yeah. तो ये दोनों हो, और इनका एक बैलेंस हो, Delicate balance. बैलेंस हो। Yeah. एंड उसके लिए एक रेशियो, वो रेशियो अगर आप अचीव कर लेते हो वोलेटिलिटी के टर्म्स में, दैट इज वन। सेकेंड, दिस शुड मैच इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। Hmm. ये नहीं कि आपने बेस नोट मटेरियल 4-10 इकट्ठे कर लिए और 4-6 टॉप नोट कर लिए और मिला दिया, सर तब आप निरंकुश सुगंधकार हुए। So
I just learned from sir at my recent visit to Kannauj that the term accord Mm. really means leading on one over the other, and in such a beautiful way. While you were teaching accords, I thought that this is like sare gama pada nisa, one overlapping the other, Yes, and then applying it in the field of music. yes, So the accord, you mean to say that it should have a delicate balance yes. where it can overlap each other very well. Very true, Mohit. When we say accord, in fact, a nice accord, and combination of number of such accord, either for a top note, or for a bass note, or for a middle note, Right. and this is the point when one should understand what an accord is. When we say an accord, normally it's a combination of 4 or 5 material in general. In some exceptional cases, 6 or 7. So an accord is a combination of two or more perfumery material where individual material loses its odor identity. Wow. Okay. If you remember, we had a lot of discussion on my slide when I asked कि खुशबू क्या है, fragrance क्या है, and काफी देर तक हमारा क्लास में डिस्कशन हुआ कि नहीं ये कैसे हो सकता है. If you remember, we call it as a smell without a smell. Yeah. Guys, there was a very interesting thing. And what I learned at Kannauj is how to create the fragrance of a rose without using any part from the rose Rose, itself. yes, yes. So it is a beautiful, I was overwhelmed with that whole concept. And that is how accords are created, because there is a odor memory that you will generate for a perfume, but it is very difficult to identify what exactly is that substance that you like in your favorite perfume. That is true. So if you could able to make a proper dose level of top, middle, and base note, one, Yeah, and the proper selection of the ingredient. right. For example, you have taken some materials which doesn't matches with the top note, or the vice versa. Though they are the base note material, they are the top note material. But it is not necessary that they will blend in No, very no, well. no, no, no. So that blends, the right combination has to be there in the top and the base load material in terms of their volatility and in terms of odors. Hmm. So it should be a proper combination of selection of the raw material in terms of an odor, and then selecting them in terms of their volatility for top, middle and base note. जैसे हम आम आदमी की भाषा में हमने आपको बोला था ना कि टॉप नोट मटेरियल का मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 से कम हो, 150 पर वो बॉयल करने लगे, Right. 150 डिग्री सेल्सियस पर. द मिडिल नोट मटेरियल इज 150 टू 225 डिग्री सेल्सियस, उस बीच में वो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट हो. एंड वो मटेरियल जिनका बॉइलिंग पॉइंट 225 डिग्री सेल्सियस या उससे And beyond. बियॉन्ड हो. Yeah. तो ये अगर मोटी सी बात आपको मालूम है कि ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, और आपने उसके हिसाब से टॉप, मिडिल और बेस नोट सेलेक्ट कर लिया, और ऑर्डर सही सेलेक्ट की, Hmm. मतलब एक तो ये एक पार्ट है और सही ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया. बट अगेन जो आपने पहले भी कहा था ना, ऑर्डर मेमोरी चाहिए. Yeah. So, guys, this is an important thing. Lot of you guys have been calling me and asking how to start up a perfume business, and it is not that easy. Just by combining product, you cannot be termed as a master perfumer. You need to know the exact science, and that is what FFDC is aiding you at. Start their entry level program, start with an online program, so that you can at least start to identify a lot of fragrances and take your vision in a direction that you want to. And the good part is that they send you a kit at home which you can online identify in a very systematic manner. And Shakti sir will be leading the class with other faculties, and you will get a lot of information. This is a short term program, it takes only 5 days, but you will not only be a better person to buy a perfume for yourself, but also start to understand what is the right fragrance and where to spend the right amount of money. So sir, there are two do's that you told us. What is the biggest two mistakes people make? Not a proper selection, that is one. Second, when you want to make your own brand, for example, and they buy a perfume
or they select a fragrance, to be very precise, the fragrance, because combination with alcohol is a perfume. So you have taken a perfume, a fragrance, and you are giving it to somebody who makes convert that into a perfume. Right. So he mix up with an alcohol, with some other denaturant and some other material, and converts that into a perfume, and then he bottles up. But again, whatsoever you are giving him or her in this batch, are you getting the same in the next batch? That is a very big challenge. Because कस्टमर को दोबारा नहीं मिला ना, वो कहा ये तो कुछ बदल गया है। Right. It's तो like going to your favorite restaurant and not getting the same dal makhani again. यस 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 Yeah. वेरी ट्रू। तो Yeah. most of the people, I tell you, it's not only the perfume, Mohit, even cosmetic manufacturers, Sure. even agarbatti manufacturer, when they come to my classes and I ask कि अच्छा आप क्या बनाते हैं? सर हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, नहीं तो बनवा लेते हैं, हम अगरबत्ती बना लेते हैं। अच्छा कितना परफ्यूम खरीदते हैं? सर 30 किलो खरीदते हैं, 40 किलो खरीदते हैं, ऐसे करके 4-5 खरीद लेते हैं। सर कभी आपने टेस्ट कराया? नहीं सर वो जैसा देता है अच्छा है देता है। Mm. सर दे नेवर टेस्ट इट। Yeah. सर आप 40-50 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो एक बार में, महीने भर में करीब 1-1.5 लाख का खरीद ले रहे हो। सर आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, जो वो बिल काट दे रहा है वही आप मान ले रहे हो। So our old saying, "Penny wise, pound foolish," is absolutely true. So guys, if you are a perfumer or you're wanting to do that and you want to get your raw material or your finished goods tested, then this is the right place. You need to contact यस FFDC. यस दैट इज वन। सेकंड, तो द फर्स्ट थिंग इज कि जो आप ले रहे हो उसको टेस्ट जरूर करो। Right. वन। सेकंड, आपने दिया किसी को बनाने के लिए, Right. मे बी फॉर मेकिंग अ A third परफ्यूम, party थर्ड manufacturer. पार्टी बेनिफिट, वो आपने क्रीम दिया, शैम्पू के लिए दिया, कहीं पर भी दिया, तो जो आपने दिया वही उसने डाला Ensure that. और उतना ही डाला। उतना ही डाला. दो, Absolutely. तो देर आर वेज एंड मीन्स टू डू इट। तो जो आप ले रहे थे वही मिला, जितना दे रहे थे उतना ही डाला, वही डाला और उतना ही डाला। अगर ये तीन चीज आप कर लेंगे, बिकॉज अदरवाइज आप हर बैच मैन्युफैक्चरिंग में क्या फैक्ट्री में मौजूद रहेंगे? Absolutely not. So I understand. यस Yeah. So I think viewers have this understanding that scientific background plays a very big role and testing plays a very big यस role. And you need to keep your batches consistent and constant so that you have constant repetitions यस of your वेरी product. वेरी ट्रू। सो मेरा ये जो आप कह रहे थे कि क्या डूज एंड डोंट्स है, वो जो भी लें वो टेस्ट कराएं, Right. बनाने से पहले और बनाने के बाद। अगर ये दो चीजें कर लेते हैं तो उनको हर बार फैक्ट्री में खड़ा दे, वो अपनी मार्केटिंग देखें, वो अपना मैनेजमेंट There देखें। is a lot more to do. उनको बहुत बहुत सा काम करना है, परफ्यूम बनाना ही एक काम नहीं है, Right. उनको बहुत सारे काम देखने। और ये सपोर्ट वो कहीं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कराना चाहिए जिसका बिजनेस इंटरेस्ट नहीं हो। सर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है I agree. कि अगर उसका बिजनेस इंटरेस्ट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस बिजनेस में है तो वो रिपोर्ट अफेक्ट कर सकती है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसी जगह से कराना चाहिए, लैब से जो NABL एक्रीडेटेड हो। कहने का मतलब, सर जो टेस्ट कर रहा है उसको भी तो कोई टेस्ट करे कि वो टेस्ट करने काबिल है। Right. So, guys, like you buy gold and you run to MMTC and get it hallmark tested, this is the hallmark of perfumery FFDC in India in a very small town called Kannauj. And I've had a beautiful experience at the center, and the facilities are really nice. They have a lot of programs. Please do check out their website, and I'm sure those of you who are really interested in the art of fragrance and perfume making, you will enroll very, very soon. Shakti sir, my last question. खुशबू बनाने के लिए बदबू कितनी जरूरी है? I learned this in your class. There are certain ingredients that smell awful, but I'm sure they are very important for a perfumer. What is it? कमिंग टू दैट पॉइंट, बट बिफोर दैट आई टेल यू, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत बड़े भी हैं। Yeah, 1 हफ्ते के भी हैं, 2 हफ्ते के भी हैं, 3 हफ्ते के भी हैं, इंटर्नशिप के भी ऑप्शंस हैं, 1 साल का भी ऑप्शन है। आप 12th करके आ जाइए तो भी है, आप ग्रेजुएशन करके भी आ जाइए, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ जाइए। और इवन जो सबसे बड़ा कोर्स है दुनिया में जो अभी तक किसी ने नहीं लॉन्च किया, दैट इज MSc
इन फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर, वो भी हमने Yeah, you लॉन्च have किया that हुआ। course. यस, Yeah. दैट इज विद सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर एंड एफएफडीसी टुगेदर। तो आप सिर्फ पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका बैकग्राउंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी सिर्फ विल पावर इंपॉर्टेंट। अगर आप चाह रहे हो पढ़ना तो आप आ सकते हो, हम आपको सिखा सकते हैं। आपके हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा आपने कहा, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इट्स ऑल डिमांड ड्रिवन अप्रोच। तो वो कहीं कहीं पर भी वो सीखना चाहेंगे तो हम रोकते नहीं, क्योंकि बड़ा साफ बात कही जाती है सर कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। Right. तो आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप आकर हमसे सीख सकते हैं। और वेबसाइट है, हमारे इंस्टीट्यूट का सोशल मीडिया है। आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हमारे इंस्टीट्यूट पर, या हमारे मेरे नाम से, शक्ति विनय शुक्ला के नाम से आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, या हमारे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी कनेक्ट हो तो आपको दिखता रहेगा कि कौन सा इवेंट हो रहा है। और एफएफडीसी के जो प्रोग्राम्स हैं वो तो आपको फ्लैश होते ही हैं, इंडस्ट्री के भी जो इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में पूरे, Right. वहां से हम सब जगह सारे जगह कनेक्टेड हैं। तो अगर आप उस फील्ड में हो तो कुछ भी घट रहा है, कोई न्यूज़ है, कोई नई चीज़ है, कोई इवेंट है, आपको मालूम होता 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 रहेगा। It's an update या for everyone. अपडेट फॉर देम। Yeah. अगर वो कनेक्ट रहेंगे, इट्स गुड, गुड फॉर दोज हु वांट टू बी इनटू दिस फील्ड। Right. And the question I asked, खुशबू के लिए बदबू कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा एक कहना है कि वो भी भला नहीं होता जो किसी का बुरा नहीं होता। Okay. Interesting. Yeah. तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। Right. फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ऑफनली हींग इस्तेमाल करते हैं। Right. अगर आप ओरिजिनल हींग उठा लीजिए इंडिया में, और जहाँ हसाइन के आसपास से मिलती है, अगर वो हींग वो उठा लीजिए तो आपको बदबू ही लगेगी। और अगर गल वो वाली आपने इस्तेमाल कर ली और गलती से उस डोज में इस्तेमाल कर ली जो नॉर्मली बंधानी हींग की डोज है, तो आपके लिए खाना बर्बादी करेगी और गड़बड़ है। जैसे केवड़ा ज्यादा यूज हो जाए, हाँ, so it becomes very bitter. बेटर। तो ये डोज लेवल है जो तय करेगा कि ये बदबू है या खुशबू है। So it blends in so यस, beautifully. आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो चीज, Right. बात वही है। आपने कब और किसको कहाँ पर कही। अगर आप सही ढंग से कहते हैं तो वो बात अच्छी लग जाती है, और वही बात अगर आप गलत ढंग से कहते हैं तो किसी को बुरी लग जाती है। तो इफ इट इज द अप्रोप्रिएट डोज लेवल कि आपने कितनी डाली थी, अगर सही डाली थी तो वो खुशबू की तरह बाहर निकलती है। मिर्च है, सही डोज लेवल में Perfect. आपको पूरा मजा देती है, ज्यादा डोज लेवल होती है तो दिक्कत करती है। हींग के साथ भी है ये। तो ये दो एग्जाम्पल है। सिमिलरली, वो ज्यादा डोज में होगी तो बुरी लगेगी, सही डोज में होगी तो आपको खुशबू लगेगी। तो ये डोज लेवल का खेल है कि नॉर्मल डोज है या ओवरडोज है। Right. So, guys, there are a lot of animalic characters that come out in your masculine fragrances, and there is a lot of role of the opposite sex attracted towards certain kind of fragrance. But Shakti sir has a lot of knowledge, which obviously one podcast cannot cover. And for that, I would request you guys to put in your names under the comments below if you are interested in this program, and I will curate a personal batch where I will take you to Kannauj myself and get you enrolled in this program, and we'll all be together in this journey where we can help you create your idea into your favorite bottled perfume and help you market with the help of FFDC. Sir, thank you so much for being on the show. I'm sure इस शो के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल आने वाले हैं जिनको अभी तक हमने आंसर नहीं दिया है, बट इसी बहाने हमें मौका मिलेगा आपको दोबारा शो पर बुलाने के लिए. But thank you so much for gracing us at Gurgaon Pod, and I'm sure a lot of people are going to reach out to you. बिल्कुल मोहित, कोई भी महकता हुआ सवाल मोहित के की तरफ से आए उसका हमेशा स्वागत है। Thank you so much, sir, for being on the show. Thank you.